یہ ہے ہینسل اور گریٹل کی حیرت انگیز کہانی۔ السلام علیکم دوستو، اسمارٹ فن وتھ اسمائل اسٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور جادوئی اور دلچسپ کہانی لے کر آئے ہیں، تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گھنے تاریک اور پراسرار جنگل کے کنارے ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی اور دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا۔ بیٹے کا نام ہینسل اور بیٹی کا نام گریٹل تھا۔ بچوں کی سگی ماں کافی عرصہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی اور لکڑہارا نے دوسری شادی کر لی۔ ان کی سوتیلی ماں انتہائی ظالم، خود غرض اور بے رحم عورت تھی۔ ہینسل اور گریٹل اپنے چھوٹے سے گھر کے باہر کھیلتے اور مٹی سے گھر بنایا کرتے۔ دیکھو کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے ہم نے۔ واقعی یہ تو واقعی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ ملک میں ایک بار بہت ہی مہنگائی، یہاں تک کہ کھانے کے لیے روٹی کا ایک نوالا بھی ملنا مشکل ہو گیا۔ لکڑہارا دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی وہ اتنے پیسے نہیں کما پاتا تھا کہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک رات جب لکڑہارا پریشانی کے عالم میں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی ظالم بیوی نے اس سے کہا، لکڑہارے، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ کل صبح ہم بچوں کو جنگل کے سب سے گھنے اور سنسان حصے میں لے جائیں گے اور انہیں وہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیں گے، ورنہ ہم چاروں بھوک سے مر جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر تڑپ اٹھا اور بولا، لیکن وہ ہمارے بچے ہیں۔ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جنگل کے جنگلی جانوروں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مگر اس کی بیوی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تانے دے دے کر اس حد تک مجبور کر دیا کہ کمزور دل لکڑہارے کو حامی بھرنی پڑی۔ جاگتے ہوئے ہینسل اور گریٹل نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ گریٹل یہ سن کر زاروں قطار رونے لگی، لیکن ہینسل بہت سمجھدار تھا۔ اس نے اپنی بہن کے آنسو پوچھے اور تسلی دی۔ ہینسل، کیا اب ہم ہمیشہ ایسے ہی بھوکے رہیں گے؟ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ فکر مت کرو گریٹل، میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچوں گا۔ کافی رات گزر گئی، پھر اس کے بعد دونوں اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی سوتیلی ماں نے بچوں کو جگایا اور انہیں روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ رات کو ہینسل نے چپکے سے باہر نکل کر اپنی جیبیں سفید چمکدار پتھروں سے بھر لیں۔ راستے میں وہ ہر چند قدم کے بعد ایک سفید پتھر گراتا جاتا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچے تو سوتیلی ماں نے آگ جلائی اور کہا، یہاں بیٹھو، ہم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں، شام کو تمہیں لینے آئیں گے۔ بچے سارا دن انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ گریٹل پھر ڈر گئی، لیکن ہینسل نے مسکرا کر کہا، ڈرو مت گریٹل، میں نے راستے میں سفید پتھر گرا دیے ہیں، جیسے ہی چاند نکلے گا وہ پتھر ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ اور واقعی چاند کی روشنی میں سفید پتھر چمکنے لگے۔ ان پتھروں کے سہارے وہ صبح سویرے اپنے گھر پہنچ گئے۔
बाप इन्हें देखकर खुशी से रो पड़ा, लेकिन सौतेली माँ को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद घर में फिर से फाके शुरू हो गए। सौतेली माँ ने दोबारा वो ही साजिश रची। इस बार इसने रात को ही दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि हैंसल पत्थर ना चुन सके। सुबह जब इन्हें दोबारा जंगल ले जाया जाने लगा, हैंसल के पास सिर्फ सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। इसने सोचा कि पत्थरों की जगह वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े गिराता जाएगा। लेकिन जब उन्होंने जमीन पर देखा तो वहां कुछ नहीं था। जंगल के भूखे परिंदे वो सारे रोटी के टुकड़े खा चुके थे। अब हैंसल और ग्रेटल सचमुच जंगल के इस खौफनाक अंधेरे में गुम हो गए। भूख, थकन और खौफ ने इन्हें घेर लिया। वो मुसलसल चलते रहे, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक एक खूबसूरत सफेद परिंदा इनके सरों पर उड़ने लगा। इस परिंदे की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो इन्हें अपने पीछे आने को कह रहा हो। बच्चे इस परिंदे के पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते अचानक जंगल का एक रोशन हिस्सा नजर आया और वहां का नजारा देखकर हैंसल और ग्रेटल हैरान रह गए। वाह, ये कितना खूबसूरत है। देखो, वो घर कितना लजीज लग रहा है। ये तो सच में बहुत लजीज है। मैंने कभी इतनी स्वादिष्ट चॉकलेट नहीं खाई। I can't believe this is real. It looks delicious. Do you think we can eat it? इनके सामने एक छोटा सा इंतहाई खूबसूरत घर था, लेकिन ये कोई आम घर नहीं था। इस घर की दीवारें बिस्किट और जिंजर ब्रेड से बनी हुई थी। अभी वो मजे से खा ही रहे थे कि घर का दरवाजा खुला और एक इंतहाई बूढ़ी औरत लाठी टेकती बाहर आई। बच्चों को देखकर इसके चेहरे पर एक मीठी और पुरफरेब मुस्कुराहट आ गई। छोटे बच्चे, आओ अंदर आओ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत सी मजेदार चीजें हैं। बच्चे इसकी मीठी बातों में आकर अंदर चले गए। इसने इन्हें खूब पेट भरकर खाना खिलाया और नरम बिस्तरों पर सुला दिया। लेकिन वो बूढ़ी औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। जिसे बच्चों का गोश्त खाना बहुत पसंद था। इसने ये मीठा घर बच्चों को फंसाने के लिए ही बनाया था। इसने हैंसल को पकड़ा और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। फिर इसने ग्रेटल को अपनी नौकरानी बना लिया। चुड़ैल हैंसल को रोजाना बेहतरीन खाना खिलाती ताकि वो मोटा ताजा हो जाए और इसे पकाकर खा सके। चुड़ैल की नजर कमजोर थी, इसलिए वो रोज हैंसल की उंगली पकड़कर चेक करती कि वो मोटा हुआ है या नहीं। लेकिन चालाक हैंसल इसे उंगली की बजाय एक छोटी सी हड्डी पकड़ा देता, जिससे चुड़ैल हैरान रह जाती कि ये लड़का मोटा क्यों नहीं हो रहा। आखिरकार एक दिन चुड़ैल का सब्र जवाब दे गया। इसने गुस्से से ग्रेटल को हुक्म दिया, पानी लाओ और आग जलाओ। आज मैं हैंसल को भूनकर खाऊंगी, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। चुड़ैल ने एक बड़ा सा तंदूर जलाकर रखा। जब आग खूब तेज हो गई तो चुड़ैल ने ग्रेटल को तंदूर के पास खड़ा किया और कहा, तंदूर के अंदर जाकर देखो कि आग ठीक से गर्म हुई है या नहीं। चुड़ैल झंझला कर बोली, बेवकूफ लड़की, दरवाजा कितना बड़ा है, देखो मैं भी अंदर जा सकती हूँ।
ये कहकर चुड़ैल ने जैसे ही अपना अब सर मुझे समझ और आ आधा गया। धड़ तंदूर के अंदर डाला, ग्रेटल ने अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल को जोरदार धक्का दिया। चुड़ैल तंदूर के अंदर जा गिरी। ग्रेटल ने फौरन लोहे का बाहरी दरवाजा बंद करके उस पर ताला लगा दिया। जालिम चुड़ैल आग में जलकर अपने अंजाम को पहुंच गई। ग्रेटल फौरन दौड़ी और हैंसल के पिंजरे का ताला खोला। दोनों बहन भाई खुशी से रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। चुड़ैल के मरने के बाद उन्होंने इस घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां हीरे के जवाहरात और सोने के सिक्कों भरे हुए कई संदूक मिले। Are these real diamonds? And gold coins everywhere. I can't believe it. ग्रेटल देखो, हमें कितना बड़ा खजाना मिल गया है। अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। Hansel, ये तो ख्वाब जैसा लग रहा है। अब हम खुशी खुशी अपने घर वापस जाएंगे। उन्होंने अपनी जेबें और बस्ते इन खजानों से भर लिए और वहां से निकल पड़े। look at all this gold. We're rich. ग्रेटल, अब हमारे बस्ते खजाने से भर गए हैं। Hansel, चलो जल्दी घर चलते हैं। ग्रेटल, लगता है ये बतख हमारी मदद करना चाहती है। कई घंटों के सफर पर निकलने के बाद आखिरकार दरिया के पार एक इन्हें बत्तख नजर आई। एक बत्तख की मदद से दरिया पार करने के बाद इन्हें अपना घर नजर आ गया। वो भागते हुए घर के अंदर गए। We did it. We actually did it. इनका बाप इन्हें देखकर खुशी से झूम उठा। इसने बताया कि इनकी जालिम सौतेली माँ घर छोड़कर जा चुकी है और इनके जाने के बाद वो हर रोज रोता। हैंसल और ग्रेटल ने चुड़ैल का सारा किस्सा अपने बाप के सामने रख दिया। इस दिन के बाद इनकी सारी गुर्बत और दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए। And so the family slept soundly, safe within the cozy walls of their small cottage. और वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।